गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो ठाकुर जी अगर वो आपके लिए अहितकर रहेगा तो ठाकुर नहीं देंगे। ठाकुर कब देंगे? जो आपके लिए मंगलप्रद रहेगा वही ठाकुर देंगे। गुरु पकड़ने से यही तो लाभ है कि जो मेरे लिए अच्छा है वही वो देते हैं, और जो मेरे लिए नुकसानदेह है उससे हमको कोसों दूर कर देते हैं। इसलिए उनके आदेश सर्वोपरि मेरे जीवन में। मैं देवघर की एक घटना बताता हूँ। ठाकुर जी पड़ाल बंगला में है। एक नोआखाई बांग्लादेश में एक जगह है, वहां के एक गुरु भाई जो फार्मासिस्ट थे, पढ़ाई किए थे, अपने पत्नी और बेटे के साथ आश्रम से थोड़ा सटे हुए कस्बे में रहते थे। बेरोजगार थे, कोई नौकरी नहीं था उनका, लेकिन फार्मासिस्ट से अच्छे पद पर थे, अच्छा डिग्री हासिल किए हुए थे, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। जब वो ठाकुर जी के सानिध्यता में बैठते थे तो ठाकुर को बड़ी तकलीफ होता था, इसका कोई नौकरी नहीं है, परिवार चलाने में आर्थिक मदद ठाकुर बीच बीच में कर देते थे। लेकिन जानते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो देवता हो चाहे गुरु पद पर हो, अगर ज्यादा आप अर्थ की तरफ उसको मदद करिएगा तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा, पंगु हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर इस बात को जानते थे। तो टाटा से नोगेन सेनदा, जो ठाकुर जी के सहवर्ती ऋत्विक, टाटा स्टील में काम करते थे, हमारे बाबा के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात था। मैं छोटा था, मैं नगेंदा को देखा हूँ, ठाकुरबाड़ी रोड साक्षी में रहते थे। नगेंदा अचानक ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, नगेन सेनदा। ठाकुर बोलছে नगेन रे একটা কাজ দিব করতে পারবি? নগেনদা বলেন হ্যাঁ রে ঠাকুর বলেন। ঠাকুর বলছেন একে পরেশকে একটা ভালো টাটাতে চাকরি দেখতো, একে চাকরিতে লাগিয়ে দে। আর শোন, विदिन वीक সপ্তাহের ভিতরে চাকরিটা হওয়া দরকার, এক সপ্তাহের ভিতরে। নগেনদা বলেন ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব বলে প্রণাম করে তিনি টাটা ফিরে গেলেন। ফিরবার পথে ঠিক দুদিন পরে নগেনদা টেলিগ্রাম দিচ্ছেন ঠাকুরকে, ঠাকুর পরেশদাকে পাঠিয়ে দিন, আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি চাকরি। ঠাকুর সংবাদ পেয়ে তো খুশ। ঠাকুর পরেশদার বাড়িতে খবর পাঠালেন, দুজনকে পাঠিয়েছেন, ঝড় ঝাড় বৃষ্টি হচ্ছে। ওরা গেল, তো বললেন কি ঠাকুর ডেকেছেন, তুমি তাড়াতাড়ি আসো। বলছে ঠিক আছে আমি আসছি, তোরা যা। করে পরেশদা ঠাকুর কাছে গেল না। সন্ধ্যা যোগে হয়েছে, ঠাকুর ফের একজনকে প্রার্থনা পড়ে পাঠিয়েছেন। তিনি সাইকেল নিয়ে, ওই ছাতা নিয়ে, অন্ধেরা, ওই সময় তো লাইট ফাইট ছিল না। পরেশদার বাড়িতে ওইজন আসলো সংবাদ বাহক। ওনার স্ত্রী বলে দিলেন কি তিনি বাড়িতে নেই, বলে দিবেন তিনি কালকে ঠাকুর সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি এসে বললেন ঠাকুর পরেশদার স্ত্রী বলল তিনি বাড়িতে নেই, কালকে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ঠাকুর এত আফসোস করছেন, বললেন আর করার আমার কিছু। এই জবাবটা দিলেন। বোঝা গেল পরেশদা বাড়িতেই ছিল। এই কাল ওকে কিভাবে বাড়িতে রেখেছে। ওই সময় একটা ল্যাট্রিন সিট থাকতো, ওই যে আমি যে জার্নাল করি তো, চবুতরা মতন বানানো উঁচু স্টেপ দিয়ে এরকম চড়ে লোক ওর মধ্যে সিটতে ঝাড়া ফেলতো। একটা টিনের ডাব্বা রাখা হতো, ওটা ভরে গেলে ওই জমাদাররা ফেলতো। এটা মেহতার প্রথা ছিল, যে বয়স্ক মারা ওরা জানেন, আমিও দেখেছি। তো কি করলো ওনার ওয়াইফ, ওই ল্যাট্রিনের যে সিটটা ছিল ওর দেওয়ালের আড়ে লুকিয়ে দিয়েছিল পরেশদাকে। বলে লুকিয়ে যা, ঠাকুরের লোক এসেছে তোকে ডাকবে, তোকে যেতে হবে। বোঝা গেল ওই যে লুকিয়ে দিল একটা বিষধর সাপ ছিল। তো পরেশদাকে ওখানে ফোন মেরে ডেসে দিয়েছে, পরেশদার স্পট ডেথ। সকালে প্রার্থনা করে সোমবারটা যাচ্ছে, ঠাকুর পরেশদাকে সাপ কেটে দিল, কামড়িয়ে দিল। ঠাকুর বললেন আর আমি কি করতে পারি, আমি তোকে বললাম কি তুই যা। ও আমার কথা শুনল না। अगर পরেশদা চলে যেত তো সাপ তাকে কামড়াতো না। यानी ওর মত নিশ্চিত ছিল, ঠাকুর জানতেন। लेकिन বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি খুলে বলবেন না, আপনাকে আমাকে ইশারা করবেন। अगर আমরা নাম ধ্যানী হব, তার স্বাধীনতাটা ভালো করে আমরা পেয়ে থাকবো, তো ওনার ইশারাটা আমরা বুঝে যাব, আমরা গন্তব্য রওনা দিয়ে। আমরা শুনলাম কি হলো, আমরা একটা মানুষকে হারিয়ে দিলাম। এরকম ঘটনা কই ঘটনা আছে। একটা প্রবীণ ঋত্বিক, তার একটাই ছেলে, খুব बीमार,
ডাক্তার বলে দিল আর 14 দিনের মেহমান নিয়ে যান, আর বেশি বাঁচাতে পারবো না, ভয়াক্রান্ত বিমারি তার। ওনার স্ত্রী বলছেন, তুমি তো সহব্রতী ঋত্বিক, ঠাকুরের কর্মী, তোমার একটাই সন্তান, তুমি তো ঠাকুরকে তো ভালোবাসো, ঠাকুর তোমাকে ভালোবাসে, যাও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করো এরকম কেন হয়েছে, কি করে বাঁচানো যায়। ফার্স্ট অ্যাভেলেবল ট্রেন ধরে দেওঘর আসছেন, যেমনি প্রণাম করছে, ঠাকুর বলছেন, আরে মনি, আরে তোরই অপেক্ষাতে তো আমি ছিলাম রে, तुम्हारे इंतजार में मैं था। ঠাকুর খুব খুশ। ठाकुर बोलছেন, मनी एक আমাকে राइस हालत दिवी, धान कूटने का मशीन, छोटा सा धान कूटने का मशीन क्या काम होता है, राइस हालत दिवी। ও শুনে বল, মানে ওনার মনটা খারাপ, রে বাবা আমার ছেলের শরীর খারাপ, ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক, এই সময় অবস্থাতে তার রাইস হাজার দরকার, আমার ছেলের প্রশ্নে তো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। মনটা খারাপ করে তিনি বসে আছেন চুপ মুখ দর্শন। ঠাকুর বলছেন, মনি কি রে তুই কিছু বললি না, আমাকে একটা ছোট রাইস হাজার দে না রে। ফের চুপ, ফের কিছু বলছে না। তিনি প্রণাম করে উঠে ভান্ডারাতে প্রসাদও গ্রহণ করলেন না আনন্দবাজারে। ফার্স্ট অ্যাভেলেবল ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে গেল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছেন, ঠাকুর কি বলবেন ঠাকুর? রাগ করে বলছে, কি বলবেন? রাইট হলো দরকার ঠাকুরের। ছেলে মারা গেল 2 দিন পরে। 14 দিন তো ডক্টর বলেছিল, 2 দিন পরে মারা গেল। সব ক্রিয়াক্রম হয়ে গেছে, কই মাস পেরিয়ে গেল। একদিন ওয়াইফ বলছে, তার কুষ্টি তো আমরা বানিয়েছিলাম না, একটু অ্যাস্ট্রোলজারকে কুষ্টিটা দেখা না, এরকম কেন হয়েছে। एस्ट्रोलॉजर जो कुष्ठीटा देखते 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 फट करे एस्ट्रोलॉजर चुप हो गया। आपका बेटा कहाँ है? तो बोला बेटा तो मर गया मेरा। अरे बचाने का एक रास्ता था, इसका मृत्यु योग चल रहा है, और मृत्यु योग में उस मृत्यु योग का काट भी बगल में इंगित है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाए थे क्या? तो बोलो की काट अच्छे तो दिया हुआ है कि उस बच्चे के पिता के द्वारा, उस पुत्र के पिता के द्वारा किसी सिद्ध महापुरुष गुरुजन को अगर लौह दान करवा दिया जाए तो बच्चा को बचा दिया जा सकता। ये तो देखिए साफ लिखा हुआ है। तबे ओरा माथा पीटे निलो। ठाकुर की चीज राइस हालर क्या मट्टी का होता है कि लकड़ी का? राइस हालर लोहा का होता है। ठाकुर सब पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के लिए वहां पहुंचते हैं। वो जो कहते हैं, मानता हूं मैं कोई स्वार्थ लेकर के किया, लेकिन वो कुछ दूसरी बात बोल रहे हैं, तो बात तो सुनना है। और उसी काम में अगर हम अपने को निमंत्रित कर देंगे तो मेरा जो समस्या है, मेरा जो अवस्था है, उस अवस्था से हम दूर चले जाएंगे, यानी काल कट जाएगा, काल में दूर हो जाएगा। ठाकुर उसी लाइफ फॉलोअर मांगे थे, लेकिन वो उस प्रेम को नहीं समझ पाया। ऐसे जीवन में हम लोगों का होता है। इसलिए मैं आज पहला ही टॉपिक उठाया कि गुरु के आदेश के पालन के सिवा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। मन और प्राण से यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। ये नहीं कहा जाता कि अगर वानिदा की कैपेसिटी लाख की है तो आपको भी लाख ही देना है। आप एक भी दो ना, अब 2 भी दो ना, कुछ तो दो। ये देना ही पाने का रास्ता खोलता है। गिव एंड टेक। अगर पात्रता सही है और देने वाला सही है और ग्रहिता सही है, दाता ग्रहिता दोनों सही है, और योग पात्र में आप अगर अपने गुरु के लिए करते हैं, देखिएगा भंडार होना कभी खाली नहीं मिलेगा। ये जीवन का मर्म है। द्वितीय बात है इष्टभृति। इष्टभृति कभी भी भूल करके भी मत समझिएगा कि मैं अर्थ दे रहा हूँ ठाकुर को। मैं अपना प्राण मन से, मेरा जो सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता में ठाकुर अपने मन को। ठाकुर जी बैठे हैं, श्री बोरदा भी बैठे हुए। ठाकुर जी भक्त वृंद से पूछ रहे हैं कि एक भक्त बोलता है, ठाकुर এই যে ফালানা এই সকাল 10টার সময় ইষ্টভৃতি করে, এটা তো ভালো না, আপনি তো ব্রহ্ম মুহূর্তে করতে বলেছেন। यानी ब्रह्म मुहूर्त कब से स्टार्ट होता है? अश्विनदा कितने बजे से ब्रह्म मुहूर्त? 3 बजे से। अंजलि कितने बजे से ब्रह्म मुहूर्त? 4 बजे। रीना कितने बजे से? और कोई बोले जो जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से स्टार्ट होता है? 48 मिनट पहले 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। 4 बजे सही कहे हैं, उठ के प्रिपरेशन आपको करना है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से प्रारंभ होता है, ठीक प्रार्थना के
পেলে তো ঠাকুর এই 10টার সময় করে ठाकुर बोलছেন কি ভালো করে না ठाकुर কি করে ভালো করবে এটা তো ভালো না ये तो अच्छा नहीं है इष्ट वृत्ति तो ब्रह्म मुहूर्त में देने की बात है सबसे पूछ के ठाकुर जी थक गए कोई सही उत्तर दे दिया ठाकुर जी से बोझा का बड़ खोखा इष्ट वृत्ति हो जो 10টার সময় করে কি ঠিক করে सीसी पर्दा बोलते हैं ठाकुर ना कोरा थी के कोराटाई भालो ध्यान दे सुनबे नहीं करने से वो करना अच्छा है तो क्या है करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। एक कुआं से बाल्टी से पानी खींचते हो ना कुआं का बाल्टी का रस्सी उस चबूतरे पत्थर के चबूतरे को भी काट डालता है कब प्रत्येक दिन के अभ्यास से एक दिन के अभ्यास से अगर एक दिन सोचिएगा कि मैं 1 लाख बार उस पानी को निकालूं और चबूतरा को काटूं रस्सी कट जाएगा चबूतरा पर दाग भी नहीं आएगा लेकिन प्रत्येक दिन का अभ्यास से वो रस्सी चबूतरे को काट डालता है तो करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जाते है सिर पर पड़त निशान। सीसी बोरदा जी बोलते हैं ना कोरा थी के कोराटा भालो वो अभ्यास जब सत्संग में आएगा तो उसे आभास होगा ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो उस अभ्यास में थोड़ा परिवर्तन करके कोशिश करेगा कि मैं 9 बजे उठ जाऊं फिर एक सत्संग में जाएगा कोशिश करेगा 8 बजे उठ जाओ करते करते वो 4:30 में आ जाएगा और मैं अगर उसे कह दूं तोर कोराटा ठाकुर निवेन ना तो उसी समय छोड़ देगा तो फिर करेगा ही नहीं जीवन इसलिए किसी को तिलांजलि नहीं देना किसी को बात नहीं